We are going to complete the government budget revenue deficit today. So due to some technical error, I am sending you the recording. So please go through it. Let's start with the government budget. Just a sec. Give me a minute. So budgetary deficit, I was telling you, so we are having three types of deficit: revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. So one by one, we have to calculate all the three. First, we calculate the revenue deficit, then we calculate the fiscal deficit, and then we calculate the primary deficit. So budgetary deficit is a broader term. ये एक broader term है जिसके नीचे ये तीनों deficit आते हैं. तो budgetary deficit क्या होता है? Budgetary deficit is just the difference between the total expenditure and the total receipts, or you can say the revenue of the government. Clear? इसे कहते हैं budgetary deficit. If someone asks you budgetary deficit and revenue deficit are same, answer is no. Budgetary deficit is different and revenue, fiscal and primary are different. So first that we have to do is the RD today, which we call as the revenue deficit. Deficits होते कब है? When expenditure of the government are more than the revenue or the receipt side. So what is the revenue deficit? See here. Simple formula of revenue deficit is just take the revenue expenditure of the government and the revenue receipts. The difference between the revenue expenditure and the revenue receipts is your RD. So how do we calculate the revenue deficit? First, you take the revenue expenditure. What is the revenue expenditure? Items will be given to you in the question. Say for example, interest payment, salary payment, pension payment. ये सब क्या है? Revenue expenditure है. Revenue receipts कौन सी होती है? Tax and non-tax, direct tax, indirect tax, fees, fine, penalty, ये सब क्या है? RR, revenue receipts. या तो ये items ले लो या heading ले लो. ये जो है given broader term, ये आपकी heading है. किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर in macroeconomics always take the heading. If heading is not given, then you have to take the subheading. अब revenue expenditure and revenue receipts क्या है? ये full fledged एक heading है. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन गो फॉर द सब आइटम्स. आइटम्स यानी इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, लाइक दैट. रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज योर हेडिंग. अगर रेवेन्यू रिसिप्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तब आप देखो कि टैक्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या है. अदरवाइज गो फॉर द heading. So this is how do we calculate the RD. Suppose in a fiscal year, revenue expenditure of the country is 300 crore, revenue receipt is say 200 crore. So 300 minus 200, that is 100 crore is the RD. RD means fiscal deficit. Clear? इस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट निकाला जाता है. अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखो, इम्प्लीकेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड. एक फिस्कल डेफिसिट है जिसकी इम्प्लीकेशन आप ऑल थ्री डेफिसिट्स में लिख सकते हो, बट इम्प्लीकेशंस में यहाँ हम डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं आरडी की. व्हाट इज एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. मीन्स कि रेवेन्यू डेफिसिट का एक्चुअल इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या impact आएगा. what will be the problems that India will be facing through revenue deficit. So first point क्या है? It indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget. मतलब ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को बता रहा है, इनएबिलिटी को बता रहा है कि गवर्नमेंट एक साल के अंदर अपने बजट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर अप नहीं कर पाई, रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर पाई. That shows the inefficiency. Second ये बताता है that government is dis-saving. Dis-saving का मतलब गवर्नमेंट की जो भी सेविंग थी, गवर्नमेंट ने उसको कहाँ पे स्पेंड कर दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे. वेयर दे हैव स्पेंड on the consumption expenditure. If you are spending the money on the consumption purposes, say food, clothes, water, shelter, just covering up the basic needs of the people, then does it will generate GDP? Answer is no. Consumption expenditure never generates the national income, never generates the more and more production. So if the savings is being spent on say infrastructure activities, construction of road, dams, bridges, or any other production purposes, then
you will be able to generate more and more income. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सारी सेविंग को लोगों के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर दिया, इन सब्सिडीज, पेंशन, इंटरेस्ट, इन्हीं पेमेंट्स में सारा स्पेंड आउट कर दिया. तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास अब मोर प्रोडक्शन रिसोर्सेज आए नहीं और इनकम बढ़ी नहीं, एंड वी आर हैविंग द डेफिसिट. हम पढ़ रहे हैं कि जब गवर्नमेंट के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. देन पॉइंट नंबर 3 चिल्ड्रन, it also implies that the government has to make up this deficit from capital receipts. अब क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया 100 करोड़ का. अब गवर्नमेंट उसे कहां से पूरा करेगी, गवर्नमेंट विल सेल आउट पीएसयूज. जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट पीएसयू सेल आउट कर देगी. एज रिसेंटली गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सेलिंग वेरियस पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. भारत पेट्रोलियम इज वेरी सून going to be privatized. The government is selling the government companies, and why do they sell it out? Just to cover up their deficit. गवर्नमेंट कंपनी सेल आउट हो जाएंगी, उनसे जो मनी आएगा उससे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना डेफिसिट पूरा करेगी. बट इज इट अ गुड थिंग? नो. उससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट से होता क्या है, एक्चुअली गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं. आगे देखो, use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy. अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास losses हो गए, अगर we are into losses, तो what government will do? Government बाहर से borrow करेगी. गवर्नमेंट बोरो करेगी फ्रॉम अब्रॉड और एनी अदर कंट्री, और से फिर IMF, वर्ल्ड बैंक बोरो करेगी, लोन लेगी. तो क्या लोन लेना अच्छी सिचुएशन है? नो. अब लोन से भी प्रॉब्लम आएगी. इफ वी आर टेकिंग मोर एंड मोर बोरोइंग्स, इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड, एंड अगेन we will be in a vicious cycle of debt trap, and the burden of the repayment of loan will be transferred to whom? It will be transferred to our future generation. मतलब आप लोगों के ऊपर burden आएगा, on the future generation. The burden will be transferred on the future generation. So ये problem होती है. इसमें एक line बोली है that if the borrowings we are taking, it creates an inflationary situation also. ये मैं आगे fiscal deficit में भी बताऊंगी. क्या होता है कि when you are taking borrowing, say money is taking, you are taking loan from abroad. ठीक है, see we have taken 500 crore US dollar loan from USA. What happened? The loan is coming to India. We have taken the loan. So if we are not properly channelizing that money, अगर हम उस money को proper channelize ना करें, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी, दैट इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई. एंड व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट 2 days बिफोर, हाउ डू वी हैव इन्फ्लेशन? when we have an increase in the money supply in the economy. तो जब लोन आता है, बोरोइंग हम लेते हैं और उसको प्रॉपर चैनलाइज भी ना करें, तो उससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली कौन सी सिचुएशन आएगी, वी विल बी हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है मार्केट में जब हम बोरोइंग लेते हैं. एक तो फ्यूचर बर्डन बढ़ जाता है टू रीपे द लोन, एंड मोर ओवर इट क्रिएट्स एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ऑल्सो. तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये हम अभी फिस्कल में पढ़ाऊंगी. इसका एक टेक्निक है कि अगर हम बोरोइंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, क्लियर, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये क्वेश्चन हमें एफडी में करेंगे. पॉइंट नंबर 5, a high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. अब डेफिसिट बढ़ गया तो गवर्नमेंट को एक सिग्नल मिल रहा है कि you have to cut down your expenditure. Government has to cut down their expenditure. If the government will not cut down their expenditure, what will happen? It will increase the borrowings. So government has to reduce the wasteful expenditure and to increase the revenue. Revenue को बढ़ाना है, expenditure को कम करना है. Revenue कैसे बढ़ेगा? Tax and non-tax receipts को वो बढ़ाएंगे तो उनका of course revenue will be more generated. तो ये कुछ implications हैं just for the deeper understanding of the revenue deficit कि basically revenue deficit होता क्या है, इससे क्या क्या problems create होती हैं, and more and over all the 3 deficits, whether it is revenue, fiscal and primary, all creates the same kind of situation. सबका एक ही kind की situation, same problems ही आती हैं. Basically all increases the future burden. We are in debt trap, we have to borrow from outside, and we have to reduce our wasteful expenditure. So these are the things samely written. You can see here. First, it indicates that the government is enabled to cover up the recurring expenditure. Government is spending the money on the consumption. It also signifies that what will government will do to cover up the deficit? They will sell out their PSUs. Government companies sell out हो जाएंगी. Clear? And government
If we are taking the loan from the outside, future generation पे burden आएगा to repay them back and inflation situation भी create हो सकती है. And last, that we have to reduce the expenditure and increase the revenue of the country. तो ये कुछ implications हैं, समझाने के लिए तो दे रखी हैं. वही चीज बता रखी है आगे, how to control RD, measures to reduce FD वही है. How you will control? You will reduce the expenditure and will increase the sources of tax and non-tax receipts. उसके बाद है बच्चों फिस्कल डेफिसिट. अगर तीनों डेफिसिट्स में से अगर कोई एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, पेज 10.13, अगर कोई एक्चुअल में इंपॉर्टेंट डेफिसिट है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. दैट इज फिस्कल डेफिसिट. क्लियर? So fiscal deficit is very, very, very important. So what is fiscal deficit? Just see here. I'm just telling you what is fiscal deficit. Fiscal deficit is actually calculated as a percentage of GDP. Fiscal deficit is actually calculated as a percentage of GDP. So in every budget, the finance minister, he used to calculate the fiscal deficit. Presently in the budget, it was calculated at 3.5% of the GDP. And moreover, the FD just revolved nearby 3.5. And due to COVID-19 in this year, and that showed that fiscal deficit will rise tremendously because the government is incurring lot of wasteful expenditure also for the helping the poor people. So how do we calculate it? Just see. Fiscal deficit represents a more comprehensive view of budgetary imbalances. It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary developments in India. Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing. So इसमें सबसे important चीज क्या है कि fiscal deficit के अंदर हम total budgetary expenditure minus total budgetary receipts. जब मैं टोटल की बात कर रही हूँ, टोटल मीन्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. बजटरी रिसिप्ट्स में दोनों चीजें आएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, बोथ रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी, कैपिटल रिसिप्ट्स भी. बट क्या चीज नहीं आएगी? दैट इज बोरोइंग माइनस बजटरी रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. So budgetary receipts में what do we don't include is borrowings. We don't include the borrowings. Clear? That is the main thing, that we don't include borrowings in the fiscal deficit. Why do we don't include borrowings? Why are we not actually including the borrowings? The answer is, देखो हम गवर्नमेंट क्या निकाल रही है, डेफिसिट निकाल रही है. बेसिकली व्हाट इज दैट? अ प्रॉफिट लॉस सिचुएशन. So the borrowings which we have taken, it is a loan. It is a loan. Suppose India has taken loan from USA, it is a liability of India to pay them back. ये liability है, वो हमारी receipts, permanent receipts थोड़ी ना है कि हमेशा हमारे पास रहेगा. नहीं, वो हमें वापस करना है. जो चीज हमारी है ही नहीं, उसे हम अपना कैसे कह सकते हैं? तो उसे हम अपनी प्रॉफिट लॉस सिचुएशन में कैसे दिखा सकते हैं? नो, वी कांट. वी हैव टू पे देम बैक. Why? Because it is a liability. जब मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट्स कराई थी कल, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में 3 कंपोनेंट थे, अगर आपको याद हो. तो पहला था हमारा बोरोइंग, दूसरा था हमारा रिकवरी ऑफ लोन, थर्ड था डिसइन्वेस्टमेंट. जो बोरोइंग है वो लायबिलिटी है, यू हैव टू पे बैक. सेकेंड, रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को लोन दिया था, उसने आपको वापस कर दिया, यू डोंट हैव टू पे देम बैक, वो लायबिलिटी नहीं है. The person has given you back the loan, that is not a liability. वो वापस होना करना है. He has given you back, it reduces your asset. Third, disinvestment है, आपने अपनी कंपनी सेल आउट कर दी. What is going on now? Assets have been reduced. तो वो आपने सेल आउट कर दिया, आपने जो भी पैसा लिया आफ्टर सेलिंग आउट दैट कंपनी, यू वोंट गिव इट टू एनीवन. नो, इट इज योर इनकम. सो क्या चीज हमें वापस करनी पड़ रही है? केवल लायबिलिटी, दैट इज द बोरोइंग. एनी काइंड ऑफ लोन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स फ्रॉम अब्रॉड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैज टू पे देम बैक. That is why in the deficit calculation, we don't include borrowings. अगर आपसे कोई पूछे कि हम borrowings को क्यों नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर आप लिखकर बताओगे कि we don't include borrowings. Borrowings का मतलब, तो हम क्या ले रहे हैं? अगर हम borrowings नहीं ले रहे तो क्या ले रहे हैं? We are taking non-debt capital receipts. Non-debt
कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट मतलब जिसको वापस नहीं करना, विच इज नॉट अ लायबिलिटी, विच इज नॉट अ लायबिलिटी, विच डजंट गिव राइज टू डेब्ट। डेब्ट मतलब लोन। तो जो चीज हमें वापस नहीं करनी वो हम अपने प्रॉफिट लॉस सिचुएशन में दिखाएंगे, अदरवाइज जो हमें वापस करना है लायबिलिटी, दैट वी विल नॉट include in the calculation of fiscal deficit. So this is the thing, how do we calculate the fiscal deficit? Just have a look. There are 4-5 formulas. All the formulas are one from the another, and you have to just understand all the formulas so that when the numerical come you can adjust the formula, which formula you have to apply according to the digits given in the question. Accordingly आपको वो formula apply करना होता है। तो देख लो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब what I am taking about revenue expenditure also, and I am taking capital expenditure also. When I am talking about total receipts, तो total receipts में क्या आता है, revenue receipts भी आती हैं और capital receipts भी आती हैं। But capital receipts कौन सी वाली, non debt। हम borrowings को लेते हैं नहीं, we don't include the borrowings. See the formula here. फार्मूले के बाद हम एक और चीज पता लगेगी। सी देयर आर 4-5 formulas here and I will tell you first formula on your screen, that is simple formula, fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts excluding borrowing। जो ही मैंने अभी बताया, budgetary expenditure minus budgetary receipts excluding borrowings। borrowings को हम इसमें नहीं लेते। अगर क्वेश्चन में नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स लिखा है तो यस वी हैव टू टेक। नॉन डेप्ट मतलब जो वापस नहीं करनी। अगर डेप्ट लिखा है तो उसको नहीं लेना, इग्नोर। सेकंड फार्मूला बिल्कुल उसी से निकल के आ रहा है फर्स्ट से। टोटल को डिवाइड कर दिया उसने रेवेन्यू प्लस कैपिटल में, रिसिप्ट्स को डिवाइड कर दिया रेवेन्यू प्लस कैपिटल में। बोरिंग्स को लेना है नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। फार्मूला नंबर 3 सेकंड का ही पार्ट है। सी उसने क्या किया, रेवेन्यू एक साइड रख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स वन ब्रैकेट, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स अनदर ब्रैकेट, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बोरिंग्स तो हर जगह एक्सक्लूड हो ही रही है फॉर्मूला में। आप कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स भी लिख सकते हो। अगर आप कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लिखना चाहते तो यू कैन राइट दिस टर्मिनोलॉजी आल्सो, दैट इज नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। आगे चलते हैं। दिस सेकंड फोर्थ फार्मूला इज दैट रेवेन्यू। देखो अब ये जो फोर्थ फार्मूला है 3 से निकला है, कैसे, आर ई माइनस आर आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो वही चीज को इसने यहाँ लिख दिया, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो 4 फार्मूलाज हमने करे, अदरवाइज इसके 5 फार्मूलाज हैं। जो फिफ्थ फार्मूला है वो प्राइमरी के बाद बताऊंगी। तो टिल नाउ वी आर हैविंग 4 formulas on your screen, as you can see. First is fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts excluding borrowings। borrowings को नहीं लेना। Second, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts excluding borrowing। उसी फार्मूले का ब्रेकअप कर दिया। थर्ड में आर उसने रेवेन्यू एक साइड कर दिया, एंड लास्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स को डायरेक्ट उसने आरडी कह दिया, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब कहानी ये है कि आपको सारे फार्मूलेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो इसलिए कि देखो एनी फार्मूला यू कैन अप्लाई एट एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि आंसर फर्स्ट से आएगा, 2 से आएगा, 3 से, किसी से भी आ सकता है एट एनी टाइम। यू कैन यूज एनी फार्मूला एट एनी टाइम। मानो किसी क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नहीं गिवन, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 इस तरीके से आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको करना पड़ जाता है। सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स की डिजिट्स नहीं गिवन है, ब्रेकअप दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, तो आप क्या लगाओगे, फार्मूला नंबर 2। इस तरीके से जो आपको सूटेबल लगता है, जिससे आपको लगता है आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, वो आप फार्मूला लगा सकते हो। एंड यू कैन यूज एनी फार्मूला एट एनी टाइम। एंड इन वन क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 फार्मूला साइमल्टेनियसली लगाने पड़ जाए। एक में आपको सपोज आरडी निकालना है, एक किसी और के अंदर आपको सिर्फ फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो आपको देखना पड़ता है डिजिट्स के अकॉर्डिंगली कि मैं कौन सा फार्मूला कब लगाऊं। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद होएगी जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन आप करोगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतने हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल। सीबीएसई सैम्पल पेपर में इसके क्वेश्चन आ रखे हैं, सीबीएसई ने दे रखा है फॉर 3 मार्क कि बच्चे प्रैक्टिस करें। तो ये 4 फार्मूलाज बच्चों आपके स्क्रीन में है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एट टाइम्स ओनली द टोटल बोरिंग्स आर गिवन इन सच अ केस फिस्कल डेफिसिट इज टोटल बोरिंग। स्टार मार्क कर दो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है और उसके अंदर उसने आपको फिस्कल डेफिसिट नहीं गिवन है और फिस्कल डेफिसिट निकालने का कोई सोर्स भी नहीं गिवन है, नो डिजिट्स, नो ब्रेकअप्स, नथिंग, क्या गिवन है, केवल बोरिंग्स गिवन है। उन्होंने कह दिया बोरिंग ऑफ इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2021 इज $6,000 व्हाटएवर, तो आप समझ जाना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बोरिंग्स हैं वो अपने आप में फिस्कल डेफिसिट है, जो बोरोइंग्स हैं वो अपने आप में एफडी हैं। व्हाई डू वी कॉल बोरोइंग एज एफडी? एफडी का दूसरा नाम टोटल बोरोइंग होता है, ये याद रख लो, लिख लीजिए चाहे आप। What is the another name of FD? Other name of the FD is the total borrowings of a country. Why? क्यों? FD को borrowing भी क्यों कहते हैं? देखो एक तो ध्यान से समझो, जब भी FD होगा, कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट आता है, तो व्हाट द गवर्नमेंट डू, जो भी अमाउंट का एफडी होता है, गवर्नमेंट यूज टू कवर अप विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग, व्हाट दे डू, द सेम अमाउंट ऑफ मनी दे जस्ट बोरो फ्रॉम द अब्रॉड। तो एक कंट्री की बोरोइंग्स अपने आप में बता देती है कि उस कंट्री में कितना लोन उस कंट्री ने उस पर्टिकुलर ईयर में लिया, या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोरोइंग विच दे हैव टेकन इन अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। हर फार्मूले के अंदर आप देखो उन्होंने बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर रखा है, हर फार्मूले में बोरिंग्स एक्सक्लूडेड है, तो बचा क्या पूरे फार्मूले में, बोरिंग्स। तो बोरिंग्स अपने आप में फिस्कल डेफिसिट शो करता है, क्यों? क्योंकि बोरिंग्स शो एक्चुअली द amount of loan which a country has to borrow from abroad or from any other organization to cover up the deficit, that is a loan requirement of a country। एक कंट्री कितना बोरो करेगी, कितना लोन लेगी पर्टिकुलर ईयर में, वो अपने आप में कौन बताता है, एफडी। ये चीज न्यूमेरिकली अप्लाई करनी है, क्लियर? अब इफ इन अ न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन के अंदर फिस्कल डेफिसिट गिवन नहीं है, उन्होंने केवल ये कह दिया इन अ पर्टिकुलर ईयर से 2019 द बोरिंग्स वाज $300, 300 करोड़ US डॉलर, and they have just given you the say revenue expenditure items and revenue receipts item। अब आप सोच रहे हो भाई अब मैं एफडी कैसे निकालूं, तो एफडी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट में आंसर दे रखा है 300 करोड़ US डॉलर, आंख बंद करके वही आपका एफडी है। मैं फिर बता रही हूँ, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर फिस्कल डेफिसिट निकालने का कोई जरिया नहीं है और केवल बोरिंग्स गिवन है, तो बोरिंग्स अपने आप में उस कंट्री की फिस्कल डेफिसिट शो करती हैं, क्लियर? बोरिंग्स इटसेल्फ is being represented as the fiscal deficit of that particular country, क्योंकि जितना एफडी होता है उतने ही अमाउंट का लोन कंट्री को बाहर से लेना पड़ता है। fiscal deficit itself indicates the total borrowing requirements of the government, clear? तो ये आप थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत है मुझे बताना। अभी हम ये इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि बेसिकली एफडी को बोरोइंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो मैंने भी बताया है। एफडी के 4-5 फार्मूलाज हैं दैट वी हैव डन नाउ, दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू क्रैम थिंग द फार्मूलाज बिकॉज ऑल द फार्मूलाज आर वन फ्रॉम दी अनदर, एक से दूसरा निकला है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। अगर आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो आपने इसमें भी पढ़ा है, इस कंसेप्ट में वो क्लैरिटी है। फार्मूलाज आपके सामने हैं, डिजिट्स आपको गिवन होंगी। अगर क्वेश्चन में डिजिट्स के थ्रू एफडी निकालने का कोई सोर्स नहीं है, तो जो बोरिंग्स गिवन होंगी क्वेश्चन में, दैट इटसेल्फ टोटल बोरिंग्स ऑफ द कंट्री इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एफडी, दैट रिप्रेजेंट्स एफडी। अब इम्प्लीकेशन ऑफ एफडी जो बच्चों हैं, ये जो पॉइंट्स है आप एफडी के, जो इम्प्लीकेशन के आप तीनों डेफिसिट्स में इम्प्लाई कर सकते हो, आरडी में भी, एफडी में भी, पीडी में, और फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, बिकॉज इम्प्लीकेशन सेम ही होती है, मोर और लेस सारी डेफिसिट्स की एक जैसी है। व्हाट इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ एफडी? अब एफडी मतलब वही डेफिसिट होगा, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम दैट इंडिया विल बी फेसिंग, डेब्ट ट्रैप होगा। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल बोरोइंग्स कौन दिखाता है, एफडी। जस्ट अ सेक।
Clear? So borrowings not involve the repayment of principal amount, but also require payment of interest. Clear? So borrowing से ये भी पता चलता है कि क्या amount हमने borrow किया है, plus as well as whatever is the interest that we have to pay on the loan. Interest payment and the principal amount both are being reflected by the FD. So ये बहुत important चीज है जो अपने आप में clear करती है that why do we call FD as the borrowing. एक तो हमें इसमें principal amount भी पता चल गई and then the interest payment also. अब इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू का पार्ट है. इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? विच लीड्स टू द रेवेन्यू डेफिसिट. It creates a vicious circle of FD and RD wherein the government takes more loans to repay the earlier loans. As a result, country is caught in a debt trap. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाएगी आपका लोन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा एंड प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स भी उसके साथ राइज होंगी. क्लियर? So this is the thing that double effect हो रहा है, that our borrowings are also rising and at the same time on the borrowings we have to pay the loan, we have to pay the interest payments, and when the interest payments will rise revenue expenditure will rise. So revenue expenditure भी बढ़ता जाता है हमारा और FD तो खैर बढ़ ही रहा है when we are taking more and more loan. What is the second implication? Inflation. इन्फ्लेशन आता है कंट्री के अंदर जो मैंने भी बताया था आरडी के अंदर भी. When do we have inflation? Government mainly borrows from RBI to meet its fiscal deficit. RBI prints new currency to meet the deficit requirement. It increases the money supply in the economy and creates inflationary pressure. अब इसका क्या मतलब है? This line is saying you that whenever the government is in trouble and the government needs money, when they are having a deficit, what they do, they take it from RBI. बैंकिंग के अंदर मैंने बताया था RBI को गवर्नमेंट ऑर्डर देती है to print more currency notes. To print more currency notes, why? To cover up their deficit. They print more and more currency notes. तो गवर्नमेंट उनको बदले में क्या देती है एज अ कोलेटरल? दे अपने बिल, सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल वो वगैरह RBI को दे यूज टू गिव इट टू देम एंड in return the RBI prints more currency notes. अब इन्फ्लेशन कैसे आएगा? अगर गलती से इफ बाय मिस्टेक RBI has printed more than the required amount, RBI ने गलती से ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर दिए तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन. इफ RBI has printed more currency notes, clear, then it will create the inflationary pressure. आरबीआई तो क्या कर रहा है? वो करेंसी नोट प्रिंट कर रहा है. किसके बदले में? गवर्नमेंट ने उसको अपने कुछ ट्रेजरी बिल्स वगैरह कोलेटरल कर दिया, उसके अगेंस्ट आरबीआई इज प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स. आरबीआई अगर नोट्स मोर प्रिंट करेगा तो अल्टीमेटली मनी तो इकोनॉमी में ही आ रहा है ना, फ्लो तो इकोनॉमी में ही कर रहा है ना. तो जब मोर मनी फ्लो करेगा मार्केट के अंदर तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन विल राइज. क्योंकि इन्फ्लेशन कब आता है? व्हेन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज राइजिंग. सो ये अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि एफडी की जो सिचुएशन है, एफडी की जो नेचर है वो इन्फ्लेशनरी है, the nature of FD is inflationary in nature, answer is yes, the nature of FD is inflationary in nature. Why? दो पॉइंट्स बन जाते हैं इसके. एक कि when we are having a FD we have to take the loan from abroad, and when we are taking the loan money supply rises and in situation of inflation also rises. And moreover, when the government orders the RBI to print more currency note, clear, to cover up the deficit, this thing also increases the inflationary pressure. So both the things, basically जो nature है FD की, fiscal deficit market के अंदर, economy के अंदर inflation को ला सकता है. Clear?
fiscal deficit can bring inflation in the economy. अगर ये क्वेश्चन आता है कि fiscal deficit can bring inflation in the economy, answer is yes. अगर आता है fiscal deficit can always create inflation in the economy, always, answer is no. Always word हो तब आप लिखेंगे no. Always का आंसर है ये. This is a question given at the back side of your Sandeep Garg also. It was asked in the CBSE sample paper. मैं वही चीज बता रही हूँ कि अब मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है. वी हैव टेकन लोन फ्रॉम अमेरिका, वी हैव प्रिंटेड मोर करेंसी नोट्स. अब उसे कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने का तरीका टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज the money which is flowing in the economy, if we are going to invest in whom? Consumption expenditure? No. If we are going to invest in the infrastructure projects such as the construction of road, dams, bridges, power, so that will be a very good thing. उससे क्या होगा? GDP will rise, more jobs will be created, national income will rise, and inflation will be controlled. Inflation basically आएगा कैसे? Money supply ज़्यादा है market के अंदर, people are having the purchasing power, but we are not having the goods to supply. पीछे से production कम होती है, prices are high. Clear? जी हम इन्फ्लेशन रिसेशन के चैप्टर में फुल फ्लेज दोबारा से करेंगे. आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे हम? अगर हम उसी पैसे को जो हमने लोन लिया है, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी होगी, गुड्स भी उतनी अमाउंट में जनरेट होंगे. मनी सप्लाई है तो गुड्स भी प्रोड्यूस होंगे, गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली होगी ही. मोरओवर जीडीपी विल राइज, नेशनल इनकम विल राइज, एंड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल. तो ये इसका आंसर है कि अगर क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट will always create inflation. Clear? It will always result into inflation. So answer is no. If the amount borrowed can be invested in the infrastructure project, jobs and the goods services will be created, more goods and services will be produced, GDP will rise, and inflation can be controlled. Yeah, but if we are not going to invest in infrastructure, अगर हम उसे productive activities में नहीं लगा रहे हैं, तो yes, answer is it will lead to inflation. और इसके क्या इम्प्लीकेशन है एफडी की? कि फॉरेन डिपेंडेंस, वही जब हम लोन ले रहे हैं, वी आर डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर द लोन, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू रीपे देम बैक. वही चाइना ने कितनी कंट्रीज को लोन दे दिया है, एंड व्हेन दोस कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू पे देम बैक, चाइना क्या करेगा? टेक ओवर कर लेगा. चाइना विल रूल दीज कंट्रीज, जो ऑलरेडी करने के लिए रेडी बैठा है. These are the things. Then hampers the future growth. Future growth again, burden on the future generation. The future generation has to pay back the loan, so the burden is mostly on the future generation, that how they will pay back the loan. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एफडी के. बच्चों आप एक बार देख लेना. डेप्ट ट्रैप है, ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये सेम पॉइंट्स आप किसी भी डेफिसिट के अंदर आप लिखोगे तो इम्प्लीकेशंस में यू विल गेट फुल मार्क्स, बिकॉज मोर और लेस ऑल द पॉइंट्स आर सेम. वही चीजें हैं. डेप्ट ट्रैप से एक तो बोरिंग बढ़ती है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होती है, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ती है, इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ. So these are the things. And what is the other name of FD? The other name of FD is the borrowings, because the fiscal deficit indicates the total borrowing requirements of the government. जो भी हमारा लॉ ऑफ FD आता है एक कंट्री के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट क्या लेती है? लोन लेती है फ्रॉम आउटसाइड. तो आज हम यही फिनिश करते हैं. कल हम थोड़ा सा प्राइमरी डेफिसिट को कंप्लीट करके 1-2 न्यूमेरिकल्स उठाएंगे. Otherwise this chapter is more or less finished by tomorrow. So I will upload this video on YouTube. Just go through it. I'm sending you the link on WhatsApp.